today we will be discussing group planning exercise. So I will just read out the story in front of you as well as the picture. All right. I think that I have posted the picture in the group. So as you can see in the picture that there are ruins of some buildings also. There is Dal Lake and there is Dhaba and there is Bela and there is hotel also and there is highway, right, Yes, sir. which is a metal road. All the dark red part is metal road, and in one side, on the left side, there is a Mori city, or there is a place which name is Mori, 20 kilometers away from that main road, and there is a place whose name is Kul, which is 20 kilometers away from that in northern part of that highway. And in the eastern part, you can see there is a forest land, and just parallelly to it, there is a railway track also. All right. And to the eastern part of the highway, we can see a place Huri, which is 25 kilometers away. All right. And in the beside the railway station, there is a Pota. There is a Pota village or whatever the place will be. We will be reading in the story itself. And in the southern direction, there is a place called Juno, which is 25 kilometers away from that place. Everybody cleared? Okay, now I am reading out the story. You are a group of students. Consider that you are 10 students from a small town Kota. You have came for picnic by bicycles to Dal Lake near ruins. You have to get back to your hostel in Kota by 6 p.m. today. On reaching Dal Lake, one of your friends goes towards the ruins. He comes back and tells you that he has overheard three robbers planning to rob the hotel next to Dhaba at 4 p.m. He noticed that all of them had knives. One of them, after discussing the plan, started keeping items in his jeep, which they were going to use for robbery and escape. At that time, a villager from Bela approaches you and asks you to help his son, which is having a very high fever. He tells you that there is no vehicle available in Bela. Meanwhile, your friend realizes that he has lost his gold chain near the ruins where he was while he was overhearing the robbers. Just then you notice flames and smoke coming from a hut in Bela village. Telephones and mobile phones are not working in the area. Time is now 3 p.m. What will you do in this situation? The scale is 1 centimeter equal to 1 kilometer. You are having 10 minutes to write down the story as well as to plan yourself. You may continue. मॉडल को एक्सप्लेन करने के बाद आपको उसके बाद अपनी स्टोरी आप थोड़ा सा मतलब उसको देख सकते हो, कोई क्वेरीज होगी तो आपसे पूछी जाएगी लेटर ऑन। उसके बाद आपसे क्या होगा, आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे, आपकी सबकी शीट ली जाए, मतलब सब आप सबको शीट प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके बाद आपको स्टोरी लिखनी पड़ेगी 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स में जैसे स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी जो शीट्स होंगी दे विल बी टेकन बैक एंड यू आर और टू स्टार्ट द डिस्कशन। वहां पे कोई नरेशन नहीं होता है, इट विल नॉट बी लाइक टीपी एंड टीटी की तरह आप नरेशन हो रहा है इंडिविजुअल की तरह। यू विल जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द डिस्कशन। ठीक है, आई एम गिविंग यू द, क्योंकि सिंस आपने स्टोरीज बना चुकी हैं। So, gentlemen, till now we all know the story. We are a group of 10 people going for a picnic at the ruins near the Dal. So, before include the what problems we encounter and prioritize them. So, in my opinion, the first the problems we have entitled is the fire at a hut, the son of the villager having high fever, the rob at a dhaba, and the lost chain of a friend. So these are the entitled. So now we should prioritize them. Okay, so for our first priority,
like to save someone's fire, We be have able to actually the fire. Also, then second comes the hotel is to be robbed. So second from my point of view, priority should be given to avoid those robbers from Work robbing should the go hotel. simultaneously, I think so. And we should give the people, I think so. for that one we have to reach before. Is not a So problem. that's the last task. We are discussing a problem. And if we see there is fire at hurt, so there can be a threat to life. So the first priority should be given to fire at hurt, and another priority should be given that the son of that villager is having a high fever. So we also give a second priority to get that problem. And third, the robbery is going to No, from my point. and at the last the lost chain of a friend. So this must be our priority. I think from my point of view, I think from my point of view, the second priority should be given to second priority should be given to the hotel which is to be robbed, See, since we are and third having priority only should 3 hours in our hand, and so I think so we should divide the people, and some should go to the robbers, some should go to the, like, two people can go to the hospital, and then some should go to the village for saving the lives. But We first are of all, having we 10 have people, to. right? But, but first of all, we have to prioritize our work. Then we do start simultaneously. First, we so will extinguish the fire in the Bela village house. Second, we will take the fever boy to hospitalize him. Third, we will reach the hotel to catch the robbers. And the fourth priority we will give to found the Okay, chain. so And then we will So one by destroy one, the fire. we will not. and prioritize them. So let us now discuss what resources are available to solving this problem. So, in my opinion, the resources that are available to us are the passerby vehicles, the cycles we own got, the primary healthcare center at the town, and a manpower of 10 people, along with the police post at the village. So, these are some resources that we have to solve these problems. As we know that it is given in the it is given in the problem that there is no vehicle over there. The person is In the requiring a vehicle to reach the hospital. Bela village, it's Having mentioned the that vehicle, that is the cycles, we have to reach the hospital in the Pota. if we read carefully, it was mentioned in the there is no vehicle at the Pota village. So it can be on the passerby vehicles to be traveling from here and there. So we can ask them for help, and we can use this as a resource. I just want to pause you. अभी सुनो, Yes, but आपके पास में मैप होगा, you can use that. तो इमेज होगी, फोटोग्राफ होगी, you can use that in between. फोटोग्राफ को देखना, सिर्फ स्टोरी मत देखना, ठीक है? You have to be sincere with yourself, honesty रखना. जो फोटो होगी, फोटो देख सकते हो आप, क्योंकि आपके सामने वहाँ मॉडल होगा, ठीक है? All right, continue. But moreover, we have rural health group, so we can admit the boy there who is suffering from a high fever. It Rather than should to have been available. The person should have not come over here for asking the help, right? yeah. So we should have to take the person to the Pota by our bicycle. That's then 2 person can go and by the bicycle to for helping that I have, person, and some should go to the. We cannot take that person on From my point of view, bicycle. always people to be few of them will help in the extinguishing fire. The help of people are available in the village, and two of them can take fever, the child having fever to the water to get him admitted at Yes, PHC. and over there, and person who is fever, they will call police as the command was that and also, will be. and we can send a group of since there is no people to there is Dhaba no before such police the station in records come village, and
check the local people and the local weapons like the sticks and the knives available before the dacoits coming, and we can set our team at the dhaba. And before the robbers come, and we can catch them before they come, and later then handle over to police. Yeah, What we so can do is, Yes. as we have a manpower of 10 people, we can efficiently use this, as we can divide it into three groups, that is of 6 people, 2 people, and another 2 people. The first 6 people, that is group A, will go to Bela, and 4 of them will segregate to dose the fire. Other two will take the child to the Pota, where the primary health care center he will get medications. The distance would be approximately 12 kilometers, and the time taken will be roughly around 2 hours. And the further, the next group, group B, consisting of 2 people, will go to Dhaba to alert the people about the dacoits. And the as we sent 2 people of the group A to Pota, so they will inform the police post there that the dacoits are doing the robbery. So this would use our manpower efficiently. And the our last group, group C, will consist of 2 people and will find the gold chain. So because it's also our problem, we have included in the problems. So these all problems will get solved simultaneously. The person who is returning from Pota would be assembling at Dal Lake. So they should not wait for searching for the gold chain initially. The person who is returning from them Pota, or the person who has gone for informing the robbers, for saving the hotel, they can return, and then they can means do the search work for the gold chain. The rest people, We, 4 people, can go to the fire extinguishing, and 4 people can go to the for hotel, for saving the hotel, because they are having the knives, they are very much equipped over there. So we can lay some sort of nails that their tires could be punctured near the dhaba, that they could not fly from there. And the 2 people can lead towards the portals, where one would call the police, would call the doctor, as there is there's emergency could be involved near the means village. also, I would say that people would be there at hotel and dhaba. We can take help from them, and also in Pota village, people would be available. So we can take from Bala village. We can take help of villagers as well to extinguish the fire. Okay, so Yeah, this definitely. And yeah, definitely, uh, very well said by Vikas Bhaiya, that villagers can be helped. And as I said, that group C, 2 people will find the gold chain, and not we will use the other 2 people to return, because we ultimately have go to Kota before 6 p.m. So instead of wasting time going and returning back, we can stay back 2 people there, so they can find the gold chain there, and ultimately before 6 p.m. all will meet at Kota and get to their destination there. yeah, but priority should be given. First priority should be given to extinguish the fire. Yeah, def- Second priority should be given to the robbers, which are the hotel being robbed. Third priority should be given to boy having fever, since fever can be reduced, putty can be done, uh, and fourth Yeah, priority to be yes, uh, yes, I fourth am very priority much to be given satisfied to with We the will do statement, but all I the think as tasks per the simultaneously, like preferences, the second preference must be given to the son who is suffering from the fever, because the incident is already going to be happen right now, and we have time to inform the all these hotel staffs to get aware about the future happenings robbering in that particular area. okay, we so can to start that work this simultaneously. Like As the send work the is six going people to Bela. simultaneously, Like yes. four of them will be extinguishing the fire. If we when we will send the 6 people to Bela, there 4 of them will be extinguishing fire, and 2 will be simultaneously taking the child to the proper PHC. And at the same time, we will be also sending 2 people at Dhaba to alert them. Then all of her work will be going simultaneously. Yeah, definitely. And the distance taken by the 2 people, as we see in the map, there is a Pagdandi joining the Dal Lake to the Dhaba. So it will be take almost 3 kilometers, and the time would be approximately 40 minutes for the people. And the third group also will complete their task within 40 to Okay, 50 stop. minutes. And at I'm the over. end, I'm over. Now, anyone of you, ठीक है? You can choose anyone to narrate the story for the group.
Roshan. Everyone agreed? Yes, sir. Okay, Roshan, Yes, sir. narrate the story. What is your plan? So, we have discussed, we are a group of 10 people at the Dal Lake. So we encountered 4 problems there, which we prioritized as the dosing the fire at the hut. The secondly, the son of the villager having fever. Thirdly, the robbery at the dhaba, and fourth, the lost chain. Plan goes like this: Group A, consisting of 6 people, will go to they will split as 4 people and to dose the fire, while the other 2 will take the son of that villager to the Kota at the primary healthcare center and get him medical. Further, they will also inform the police post at the Kota about the robbery taking place at the dhaba. The distance would be around 12 kilometers and the time taken would be approximately 2 hours. And the group B will be consisting of 2 people to the dhaba, and the rest 2 people will find the gold chain where they will reach to their hostel before 6 p.m. So our all tasks 4 है कि 5 है? 4 प्रॉब्लम है कि 5 है? 5 फिफ्थ प्रॉब्लम वो है जो हमको पहुंचना है, ऑब्जेक्टिव हमारा जो वी हैव टू रीच एट अवर मतलब डेस्टिनेशन जो कोटा से आए थे हम लोग, वहां पर हमको 6 PM पे पहुंचना है. दैट इज अवर फिफ्थ प्रॉब्लम. Coming to the directly to the solution. So whenever there is any problem, whenever we are proceeding for any solution, तो फिर पहली चीज होती है सर, we will be solving the problem simultaneously. ऐसे नहीं है कि फर्स्ट कोई प्रायोरिटी होगी, सेकंड प्रायोरिटी होगी, थर्ड प्रायोरिटी होगी. ऑल 5 प्रॉब्लम्स मतलब जो आगे की इनिशियली वाली प्रॉब्लम्स हैं दैट विल बी डन साइमल्टेनियसली. फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी होगी, प्रायोरिटी इन द सेंस जो हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले क्या होगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जो फायर मतलब कि बेला विलेज में जो स्मोक आ रहा है, मतलब जो आग लगी हुई है, उसको बुझाना है हमारा फर्स्ट काम. तो आप अगर शायद से बहुत लोगों ने, आपने ये 6 लोग हो, यहाँ पे 7 लोग हो, ठीक है, किसी ने एक चीज नहीं बोली, रिसोर्सेज आपने ऑप्टिमम यूज नहीं किया आपने अभी तक. सामने वो लेक दिख रही है तुमको, डल लेक, वो रिसोर्स दिया क्यों है पहले बताओ मुझे. डल लेक दिखी है आपको वहां पे किसी को? You are calling for fire brigade, it's okay, very good, but the resources which Yes, you have which you have been given, you should be utilizing those resources optimizingly, है ना. तो till the time you have, what you have to do, आपको क्या करना है अभी. Firstly, your purpose is to evacuate all the people who have been trapped inside that smoking area. जो कि फायर में वहां पर लोग जो ट्रैप हो रखे हैं उनको बाहर निकालने का आपका काम है. तो उसके लिए आप सबसे पहले 2 or 3 people will bring the bucket. जो भी वहां का विलेज है, लोगों को बोलोगे आप अपनी बकेट लेकर आओ, बाल्टियां लेकर आओ, राइट. पहले बाल्टियां लेकर आओगे और साइमल्टेनियसली यू विल accumulate all the मैन पावर and tell them that you have to throw the water to the smoking area. स्मोकिंग एरिया पे आप पानी डालो जितना हो सके, और साथ में सैंड मिट्टी विट्टी डालो आप, और लोगों को इवैक्यूएट करोगे until the time, or you can also throw the water on those people. क्योंकि जब फायर होती है तो एज अ फर्स्ट एड के तौर पे, nobody told me that you have to also mention the first aid kit also. फर्स्ट एड में क्या क्या चीजें आती हैं, जो आप जहाँ पे जला हुआ पार्ट होगा तो आप उसमें पानी डालोगे, बर्फ डालोगे, कुछ ना कुछ इस टाइप की कुछ एक्टिविटी करोगे. क्यों? क्योंकि जब आग लगती है तो फिर आपका मतलब बड़ा पार्ट जो होता है पूरा जल चुका होता है ना. और आपको जैसे वो लोग घायल हो चुके हैं कुछ लोग यहाँ से, तो यहाँ से आपको हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा. जब आग से निकालोगे आप, तो उन बंदों को जो भी जल चुके हैं उनको आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे. तो अभी आपकी प्रायोरिटी आपकी ये भी है कि आपको आग भी बुझानी है और लोगों को सेव भी करना है. तो आप अभी क्या करोगे, जो 2 लोग या 3 लोग होंगे, ऑल द पीपल हु हैव बीन इंजर्ड इन दिस फायर ब्रिगेड मतलब फायर इंसिडेंट, दे आर सपोज टू बी टेकन टुवर्ड्स द नियरेस्ट हॉस्पिटल. इसमें नियरेस्ट हॉस्पिटल जो होगा कौन सा होगा? Kota. कोटा में कोई हॉस्पिटल नहीं है. इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड दैट कोटा विल हैव अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल इज डिफरेंट थिंग, ठीक है.
क्लिनिक इज डिफरेंट थिंग, हॉस्पिटल इज डिफरेंट थिंग। और जो मेजर इंजरी है, ठीक है, फायर, आफ्टर गेटिंग फायर, इट इज अ काइंड ऑफ मेजर इंजरी, यू कैन इवन लॉस योर लाइफ, सो इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन। तो आप क्या करोगे, यू विल स्टॉप द नियरेस्ट व्हीकल एज सुन एज पॉसिबल विच इज अवेलेबल इन द हाईवे। नेशनल हाईवे जो है, मतलब जो हार्ड लाइन है, मतलब जो ऑरेंज कलर की है, तो आप वहां से कोई भी नियर बाय व्हीकल आप स्टॉप करोगे एंड यू विल गो डायरेक्टली टू, कहाँ के लिए, मोरी के लिए जाओगे। 4 पीपल विल अकम्पनी देम, 4 लोग जाएंगे और जितने भी इंजर्ड पीपल होंगे फायर से वो लोग जाएंगे टुवर्ड्स मोरी। मीनवाइल यू विल आल्सो इन्फॉर्म दोज पीपल, जो 4 बंदे जा रहे हैं उनको आप ये बोलोगे, यू विल इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड टू कम एज सुन एज पॉसिबल। ऑलराइट, ये आपकी SOR है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये बोलोगे कि जब आप जा रहे हो मोरी की तरफ 20 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो आप बोलोगे यू हैव टू कॉल फायर ब्रिगेड, फायर एक्सटिंग्विशर वाले को बुलाना है आपको। प्लस इन यू विल ऑल्सो मेंशन दैट अ रॉबरी इज गोइंग टू हैपन इन ढाबा, क्योंकि पुलिस को हमें बुलाना है, हम अपने आप को करेंगे नहीं सब चीज। और 4 PM पे होनी है रॉबरी, और यहाँ पर आपका 20 किलोमीटर है ये टुवर्ड्स मोरी। 20 किलोमीटर प्लस आप ये लगा लो बेला से लेकर के मोरी तक का 25 किलोमीटर मान जाएगा आपका, ठीक है। और नेशनल हाईवे में जब जाती है गाड़ी तो फिर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, ठीक है। तो जाने और आने में जितना समय लग सकता है अप्रोक्सीमेटली अगर मान के चलो आप, तो फिर आपको लग जाएंगे 45 मिनट्स to 50 मिनट्स लग जाएंगे आपको पुलिस को पहुंचने में भी। और फायर एक्सटिंग्विशर की जो गाड़ी आएगी, फायर ब्रिगेड जिसे कहते हैं, दैट विल कम एंड वो जो भी अपना रिजॉल्व करेगी। फायर ब्रिगेड जाएगी बेला विलेज की तरफ, और जो पुलिस वाले होंगे दे विल बी हाइडिंग टुवर्ड्स द होटल, ढाबा वाबा जो भी होगा, दे विल बी हाइडिंग बिफोर द होटल। एंड जब रॉबरी होगी 4 PM पे, दे विल कैच देम रेड हैंडेडली। ऑलराइट, और जो तुम्हारा बेला विलेज वाला पार्ट है, दैट विल बी टेकन केयर विद द फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन मीनवाइल ऑल द पीपल, जो लीडर तुम्हारा होगा, वो तुम लोग क्या करो, बकेट से, मतलब ऑल द ऑप्टिमम रिसोर्सेज नियर बाय से लेकर के आप वो अपना बकेट से जो भी सैंड, मिट्टी विट्टी फेंकना, आप ये सब चीजें वहां पे फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और लोगों को बोलोगे कि आप दूर रहो इसमें चीजें, ठीक है। सॉल्व, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक और चीज इंपॉर्टेंट, मीन वाइल यू आर गोइंग टेकिंग पीपल, जो भी मतलब फायर लगी थी जहाँ पर यू आर एक प्रधान जी का लड़का, द सन ऑफ अ प्रधान, वो ऑल्सो गॉट फीवर, यू विल ऑल्सो टेक दैट पर्सन टुवर्ड्स द मोरी। जब वो फायर ब्रिगेड वालों को ले जा रहे थे ना, मतलब जो लोग घायल हो रखे थे आग से, उसी टाइम पे आप जो लड़का फीवर था उसको भी आप उसमें उसी व्हीकल में अकोमोडेट कर सकते हो। यू कैन टेक दैट फीवर पर्सन टुवर्ड्स द मोरी ऑल्सो। और वैसे बताऊं तो फीवर अगर हो रखा है ना, यू कैन ऑल्सो मेंशन पैरासिटामोल देख करके, अगर नियर बाय घर पर होता है, जब जैसे कि आप जैसे समझ जाओ कि ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में पैरासिटामोल ना हो, ठीक है, फीवर कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, आप उसको हॉस्पिटल ना भी ले जाओ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन मैनेज दिस बाय पैरासिटामोल, और यू कैन ऑल्सो इवन मैनेज अ वेट क्लोथ, और थोड़ा बहुत जो मतलब रेमिडियल चीजें होती हैं, घर में चीजें होती हैं बनाई हुई फीवर को वो करने के लिए, कम करने के लिए, तो आपका वो सॉल्व हो सकता है इसमें। फीवर कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। फीवर आप नियर बाय होम से आप मांग सकते हो, इवन आप अगर कोटा विलेज से भी आप अगर मेडिसिन नहीं मिलती है तो वहां से भी ले आ सकते हो, किसी ज्यादा बड़ी इशू नहीं है वो। एंड रिगार्डिंग द, अब कौन सी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 3 सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 2 नहीं 3 हो गई टोटल। एक तो प्रधान जी का लड़का, आग जली थी वो, थर्ड नंबर पे रॉबरी सॉल्व हो गई है ना। अब 4 प्रॉब्लम है कि जो गोल्ड चेन जो थी दोस्त की खो रखी, उसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, आगे सबको समझ में? Yes. ऑलराइट, तो फिर आप जो गोल्ड चेन की Yes, तो sir. आराम से नॉर्मल प्रॉब्लम है आप Sir, बोलो बोलो, sir, एक doubt. पूछो। हाँ, मैं ये तभी रुका हूँ यहाँ पे। यहाँ तक किसको डाउट है? यहाँ हाँ sir, मेरे को हाँ, पूछो ना, फिर मैं यही तो चाह रहा हूँ। हाँ बोलो। हमें मूवी के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है, मूवी यहाँ 20 किलोमीटर है, बट मूवी का कुछ स्पेशली नहीं मालूम है। पूरी फायर ब्रिगेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी हमें ये थोड़ी मालूम है। नहीं, देखो, ऑलवेज अज्यूम, लिख लो कॉपी में अपने, ऑलवेज अज्यूम क्या मतलब, ये मेंशन नहीं होता है। इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फायर ब्रिगेड होगी, पुलिस स्टेशन की फैसिलिटीज होगी, ऑल द मेजर फैसिलिटीज दैट विल बी अवेलेबल इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। लिखो इसको, जो भी ये एरो से बनाए जाते हैं ना, ये नेम ऑफ प्लेसेस, वहां पर आपको मोस्टली सारी फैसिलिटीज मिलेंगी।
पुलिस वाले हो गए और ये फैसिलिटीज जो भी होगा Okay, sir. लिखो, बोलो। हाँ, तो स्टोरी में लिखा भी था टाउन टाउन है तो आपका हॉस्पिटल और पुलिस पोस्ट भी होगी। Yes, पुलिस sir. भी होगी। हाँ, पुलिस होगी वहां पे, पुलिस होती है वहां पे, हेडक्वार्टर में होगी पुलिस। Be a hospital too because it is mentioned हॉस्पिटल भी, that हाँ it is a small town and a railway junction is far. So हाँ, यू आर टेलिंग कि रेलवे जंक्शन में एडमिट करेंगे ना, आप बोल रहे हो। so हाँ, नहीं सर, कि वो उन्होंने मेंशन किया है कि टाउन है वो, तो टाउन में तो पुलिस पोस्ट और हॉस्पिटल दोनों होती है, होगी, होती है पुलिस तो हम फोर्स होती कोटा है, का यूज कर सकते हैं। पुलिस फोर्स होती है टाउन में। क्यों, रुक जाओ। तो हाँ हाँ, देखो ऐसा है, जो कोटा में है आरपीएफ होगी वहां पे, जो ये वाला रेलवे पुलिस होगी ना, अगर आप बात कर रहे हो तो आरपीएफ हो सकती है वहां उधर पे। जस्ट 1 मिनट होल्ड करना है। बोल रहा था कि स्टोरी में मेंशन था कि जो कोटा है वो स्मॉल टाउन है हाँ, और वहां ओके से अगर एक वहां पे जंक्शन भी है तो वो उसमें हॉस्पिटल भी होगा और पुलिस पोस्ट भी होगा, ओके, तो ऑल हम राइट, पूरी की जगह मीट के जा सकते ओके, ऑल राइट, सुन लिया सबने। Yes, sir. Because more than 50 kilometer it would be covered if we are using Mori as a ठीक ठीक, ऑल राइट, destination. ऑल राइट, अब मैं सुन लिया। ऑलवेज अज्यूम, जब भी ऐसी चीजें होती हैं, स्मॉल टाउन इज नॉट हैविंग दैट मच एडिक्वेट फैसिलिटीज। थोड़ा माइक ऑफ कर लो बाकी लोग, जब कोई बोलेगा तभी माइक ऑन करना। हाँ, तो फिर थोड़ा वो आ रही है। तो फिर जब भी टाउनशिप होती है, तो टाउनशिप में बेसिकली ये होता है कि वहाँ पर ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज एडिक्वेट नहीं होती। यू कैन एक्सपेक्ट क्लिनिकल हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो फिर मेजर इंजरी हुई है और वो भी फर्स्ट डिग्री अगर बर्न हुआ है, आग लगी है, ठीक है, तो छोटा मोटा का केस नहीं हुआ है। तो और क्या पता हम बहुत सारे केसेस हो, एक पेशेंट है, 2 पेशेंट है कि 10 पेशेंट है, वी डोंट नो। तो फिर उस केसेस में हमको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और रही बात, आप टाउनशिप की बात करते हो, आरपीएफ होती है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रेलवे स्टेशन में आपको कोई पुलिस फोर्स मिलेगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। वहाँ पर आपको आरपीएफ मिलेगी। आरपीएफ का काम होता है रेलवे का जो भी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, रेलवे की जुरिस्डिक्शन में आएगा, सिर्फ वही उनका सॉल्व करने का काम होता है। और यहाँ पर एक रॉबरी होने वाली है, हुई नहीं है, रॉबरी हुई है, होने वाली है, करेक्शन। तो टिल द टाइम आप ये सब चीजें, अगर जितना टाइम वेस्ट आप यहाँ पर कोटा में, आपको एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी और इंजरी ज्यादा हो जाए, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते इसका। तो हमको चाहिए 100% या 90% रिलायबिलिटी, क्या हमारा पेशेंट भी सही हो जाए, हमको फायर ब्रिगेड भी मिलनी चाहिए। एक और चीज देखो, अगर आप जहाँ एक जगह जाते हो, आपकी एक तो मैन पावर जो होगी एक ही जगह एक्यूमुलेट होगी, और प्लस आपकी जो होगी उसमें आपको देखो, अगर आप मोरी जाते हो 20 किलोमीटर अवे, 20 नहीं, 20+25, 20+5 किलोमीटर, मतलब 25 होगा टोटल। तो आपको मोरी जाकर के फायर ब्रिगेड मिलेगी, आपको एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर हॉस्पिटल मिलेगा, और आपको पुलिस इन्फॉर्म करने का भी मौका मिलेगा। तीनों चीज एक साथ हो जाती है। और वैसे भी रॉबरी जो हो रही है 4 PM पे हो रही है। ऑल राइट, इट अभी हमारे पास 3 बज रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं। चलो, आपको मैं थोड़ा मैन पावर एक्यूमुलेट करने के लिए भी अगर 3:10 हो जाते हैं, तो फिर कुल मिला के बात है कि 4 बजे तक होटल में पहुंच जाएंगे पुलिस वाले। और फीवर वाला केस आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। बाकी अब माइक ऑन कर लो आप सबके सब। सर। हाँ बोलो, अब बोलो। हेलो, हाँ बोलो। और एक डाउट है कि Uh, मतलब उन्होंने बोला कि फायर एट वन एट ए टाइम, रुको, रोशन को बोलने देते हैं। सर, उन्होंने मेंशन किया था कि फायर एट हट, ऐसा नहीं था कि मतलब कोई इंजोर है, तो हमने अज्यूम कर लिया एज्यूम कर कि लिया, हाँ कोई वहां पे इंजोर हो गया, हाँ हाँ, इंजरी होगी पक्का ऐसा, होगी। लेकिन ये देखो आपको कैजुअलिटी, अगर हमने ऐसा अज्यूम किया तो कैजुअलिटी है ही नहीं, तो एज्यूम करना पड़ेगा ना, क्योंकि फायर जब होती है ना, आग लगती है, घर में आग लगी है, गांव में आग लगी है उसमें, तो फिर पक्का श्योर होगा। अब घर में क्या पता कोई अटका हुआ, ये भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी। हमका आप लीडर हो, ठीक है, यू ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस विद योरसेल्फ। अभी हम मान लेते हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटी होगी ना, आप अगर बता देते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, यू विल टेल देम, यही तो बात है ना, वहाँ प्रोजेक्शन करना है आपको। प्रोजेक्शन मतलब आप जब जाओगे ना उधर, तो फिर आपको, आप लीडर किस बात के हो, इसी बात के तो लीडर हो कि आप हमेशा प्रोजेक्शन करते हो, आप हर चीज का मेजरमेंट लेते हो। आपने जो बंदा जिसने अगर रिसोर्सेज बताया होगा, रिसोर्सेज इन द सेंस कि वहां पर ये चीजें चल रही हैं, किसी ने ये मेंशन नहीं किया कि वहां पर लेक में हम क्या बोलते हैं, वहां से हम बाल्टी ला करके या पाइप ला करके हम वहां पे आग बुझाएंगे, किसी ने बोला ये अभी तक?
किसी ने नहीं बोला ये, किसी ने ये बोला कि वहां पर बाल्टी के बारे में, किसी ने ये बोला पैरासिटामोल जो हम यूज करते हैं डेली नीड्स की जो मेडिसिन होती है, दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड फ्रॉम अदर पीपल रिसोर्सेज ऑल्सो, ये बोला किसी ने नहीं बोला ये। होटल था वहां पे नियर बाय, वहां से भी मेडिसिन ला सकते थे हम पैरासिटामोल की, है ना। तो इस तरीके से आप रिसोर्सेज दूसरों की गलतियां पॉइंट आउट करो। एक लीडर तुम ना इस चीज में मत लड़ना कि पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी, थर्ड प्रायोरिटी, ये होता है छोटे मोटे बच्चों का काम। आप एक बड़े लीडर हो तो आप जो गलतियां कर रहे हैं ना, जो लोग पॉइंट मिस कर रहे हैं, आप ये बोल सकते हो जेंटलमैन आई थिंक दैट वी हैव मिस्ड आउट अ पॉइंट आफ्टर since people are going to call the fire brigade. Meanwhile, there are some people we can extinguish the fire using the buckets and filling the water. Meanwhile, we can also use some pipes and we can also throw the sand over it so as to discontinue the fire, है ना। और जो फर्स्ट एड का एक होता फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एड के लिए क्या करना है आपको, जो बंदा जो फायर से जल चुका है, झुलस चुका है, उसको पहले तो आग में थोड़ा बहुत कोल्ड करना है। अगर आपने इंजरी के बारे में पढ़ना, आप ये सर्च करना नेट में कि फायर इंजरी के बाद कैसी फर्स्ट एड दी जाती है। उसमें आपको बर्फ लगानी पड़ती है और आपको पानी से उसको धोना पड़ेगा, है ना। ऊपर से आपको पट्टी लगानी पड़ेगी, जो भी पार्ट जल चुका है उसमें आपको उसको कपड़े से बांधना पड़ेगा, है ना। किसी की ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्या पता, है ना। कुछ लोग बेहोश हो चुके होंगे, उनको सीपीआर देना पड़ेगा। सो ये काम जो होगा स्ट्रेचर बनाना और ये सब चीजें, मैंने एक इससे पहले लेक्चर में आपको फर्स्ट एड कैसे करनी है वो सब मैंने आपको बता रखा है। मतलब उसी का ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का ही वो मैंने वो बता रखा है अभी फुल डिटेल। तो अब रोशन, आप कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ बताओ आप। नो सर। तो आप ना सर जितना बोलोगे ना, जितना एडिशनल वैल्यू एडिशन बोलोगे आप, दैट वैल्यू विल बी काउंटेड बाय द जीटीओ। वहां पर नोट करता है हर एक बंदा। एक पॉइंट अगर बोलता है ना, अगर किसी ने अगर ये पॉइंट बोला होता ना यहाँ पे कि जेंटलमैन वी शुड आल्सो टेक द वाटर फ्रॉम रिवर या फिर लेक, तो वो जीटीओ अपना आप नोट कर लेगा। आप वहाँ पे इस छोटे से पॉइंट बोलने में भी आप 10 सेकंड भी अगर आप अच्छे से बोलते हो तो चीज। और लड़ते हैं आप बहुत ज्यादा, वो लोग अपनी अपनी वो दिखाते अपनी हुनरता दिखाते हैं। तो आप कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, कम से कम 3-4 बोलो तो फिर टिक कर बोलो 10 सेकंड या 15 सेकंड। मिस्ड आउट पॉइंट निकालो और जिसने कोई गलती करी है उसको वो करो, करेक्ट करो। अब प्रियांशु बोलो। हाँ, प्रियांशु का कुछ क्वेश्चन था। हाँ प्रियांशु, आवाज नहीं आ रही है साफ, औरों को आ रही है क्या? हम्म नो सर। प्रियांशु की आवाज साफ नहीं आ रही ना। प्रियांशु ऐसा करेंगे ना, तुम अपना उस लिख कर चैटिंग में लिख करके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर लेना टिल द टाइम और किसी की क्वेरीज हैं तब तक। सर मेरी ओके। Yes, sir. सर हाँ सर साइकिलिंग, हम साइकिल, हमारे पास साइकिल एक रिसोर्स है हमें ओके मुरी पहुंचने के लिए। ओके, मोरी तो सर पहुंचने के हमें लिए। टाइम कितना हाँ सर तो हमें अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लगेगा, क्योंकि हमें बाय द टाइम 4 बजे से पहले इन्फॉर्म करना है ताकि 4 बजे से पहले पुलिस आ भी जाए वहाँ पे। हाँ हाँ, देखो और सर हमें मोरी तुम साइकिल में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है। ओके सर। तुम अपनी साइकिल टिल द टाइम वहां पर छोड़ ही दो, ठीक है। वो तुम साइकिल यूज कर सकते हो फॉर रीचिंग टुवर्ड्स ढाबा। कुछ लोग जा सकते हैं कि हाँ वहाँ पे मैन पावर चेक करने के लिए फॉर द टाइम बिंग, कि वो जो रॉबर्स हैं उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक पुलिस आए वहाँ पे। ये कर सकते हो तुम, साइकिल लेकर के ढाबा जा सकते हो। इवन साइकिल लेकर के आप अपना कोटा जाने के लिए, रिटर्न होने के लिए शाम को 6 बजे तक वो यूज कर सकते हो अपनी साइकिल, है ना। मोरी सर जाने के लिए क्वेश्चन में बोलो। मेंशन था कि कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे, ओके, तो ऑल राइट। पुलिस वहाँ पे पहुंच कैसे रहे हैं वो भी यही तो 4 मैंने बजे तक? अभी तक स्टोरी सुनी नहीं मेरी शायद से। बाकी लोगों ने सुनी, क्या बोला था मैंने सोल्यूशन में, कैसे आई पुलिस? रोशन, कैसे आई पुलिस वहां पे? सर हमने दो बंदे और हाँ भेजे उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए, हाँ हाँ, तो गाड़ी से आ गए। बस हो। तो दोबारा से करेक्शन, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ पूजा के लिए भी। जब हम जा रहे थे बेला से लेकर के मोरी, इंजर्ड पर्सन को लेकर के जो आग से झुलस गए थे, तो हमने मीनवाइल उन लोगों को बोला था, जो लोग लेकर जा रहे थे इंजर्ड पर्सन को, और हमने उनको बोला था जब आप जाओगे इधर, एक तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराओगे, प्लस पुलिस वालों को बुलाओगे वहां से, है ना। और साथ में फायर जो ब्रिगेड आएगी, आप सब लोग अपने वो माइक ऑफ कर दो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। पूजा का ऑन रहने दो सिर्फ। हाँ, तो इस समय हमारी पुलिस जो आएगी वहां से मोरी से लेकर के तब आएगी यहाँ से, ठीक है। फिर ढाबा, समझ में आया पूजा?
सर तो इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा हो मतलब जाएगा 1 आवर 60 में 20 40 40 40 एंड प्लस 40 रिटर्निंग क्योंकि 40 एंड वहां से 40 रिटर्न। पेशेंट को लेना देखो 3 बज रहे हैं अभी करेक्टली, अभी बताता हूँ आपको, बस काउंट कराता हूँ आपको। 3 बज रहे हैं और आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है। 1 2 3 4 5 25 किलोमीटर, 25 प्लस 25 25 किलोमीटर जाने में, दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से, अगर 60 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी स्पीड भागती है तो, क्योंकि नेशनल हाईवे है ना ये, तो 50 मिनट्स मतलब टोटल लग जाएगा जाने में भी और आने में भी, अगर मैं ज़्यादा सा मोटा मोटा बताऊँ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि 20 किलोमीटर ऑफ तो तुम्हारा मोरी है और 20 किलोमीटर आने में लग जाएगा, 40 किलोमीटर हो गया, 40 प्लस 10 किलोमीटर्स मोर अगर लगता है तो 50 किलोमीटर हो गया ये। तो आपका आ जाएगा 1 घंटे में, तो आ ही जाएगा आराम से। क्यों, क्या लगता है तुमको? आ जाना चाहिए ना 1 आवर में, क्यों बाकी लोगों को क्या लगता है? सर मेरे को लगता है सर हम्म क्योंकि हम्म माइक्स मतलब बाइक सर हाँ हाँ सर सर मैं बोल रहा था हाँ कि हमें लिफ्ट जो हाईवे पे है उससे लिफ्ट मिलेगी, तो सर हमें लिफ्ट पे भरोसा नहीं करना चाहिए ना कि कितना टाइम लगेगा लिफ्ट मिलने में, कितना टाइम में व्हीकल मिलेगा हमें। मिल जाएगा, उसी समय मिल जाएगा, इट इज अ नेशनल हाईवे ना, नेशनल हाईवे में मिल जाता है, गाड़ी व्हीकल जाती रहती है। और तो और सर आप प्राइवेट व्हीकल मिल जाती है तुमको, प्राइवेट व्हीकल में जाना है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप जाओगे लेकर के किसी को, तो प्राइवेट व्हीकल में आपको जाना है, ऐसे नहीं जाना है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जाना है। इसके लिए मैंने और भी चीजें बताई हैं, ये तो अभी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज दूसरी है, इससे पहले एक और जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मैंने वो सॉल्व करी है, वो जो मतलब उसमें शायद से कुलदीप भी था उसमें, तो आप उस वाली ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को देखना एक बार, ठीक है, और उस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को देख करके सोल्यूशन देखना उसमें। ऑल राइट, उस सोल्यूशन को देख करके आप करोगे सब कुछ चीजें, पहले खुद सर बनाओगे एक खुद डाउट है सोल्यूशन। सर। हाँ बोलो, हाँ पूछो ना सारे। अरे सर ये बोल रहा हूँ कि सर जो मैन आया था कि उसे फीवर है, हाँ तो अपने बच्चे को लेकर आया था, तो सर ये भी सर से बहुत हार्ड फीवर होगा जब भी वो आपके पास आया लेके, तो अपन ऐसा, ऐसा कर वो सकते हैं ना उन 4 डिस्ट्रैक्शन है, लोगों के साथ जो गए हैं। डिस्ट्रैक्शन है, वही तो बोल रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन है ये चीजें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आप ना बड़ी मेजर प्रॉब्लम ना मानो, ठीक है। अभी पहले पहली बार फीवर हुआ है, अभी तो तुम और एक सर बार रात को फीवर हुआ है ना उसका, बोलो। ऑल राइट, हाँ बोलो प्रियांशु। सर जैसे गोल्ड चेन वाला बस सीन था, उस बोर्ड डिस्ट्रक्शन होगा क्योंकि गोल्ड चेन अपने भी डूब सकता है। हाँ, वो भी डिस्ट्रैक्शन है एक तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये पैनिक नहीं होना तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी चीजों को लेकर के। अगर मैं बोलता हाँ थोड़ा इंजरी हो रखी है और कुछ ऐसा हुआ है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड निकल गया है, तो हम बोल सकते थे हाँ इसको हॉस्पिटल ले जाओ, है ना। अगर फीवर कंटिन्यूअसली फ्रॉम 5 डेज है या 7 दिनों से है, तो हम हॉस्पिटल ले जाते शायद से, लेकिन वो रात को फीवर हुआ है तो फिर ज्यादा बड़ा केस थोड़ी हुआ है वो। तो आप एक्चुअली में पता है, अपने आप को डिफरेंट बनाओ ना ग्रुप से, यही तो बात है तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग, जब रीजनिंग एबिलिटी होगी वहां पर, रीजनिंग एबिलिटी तो हर एक चीज के लिए रीजन होना चाहिए आपके पास, कि आप ये सोच रहे हो तो क्यों हो रहे हो। तो और लोगों को जो आपके जो मेंबर्स हैं ऑब्जेक्ट करेंगे पक्का, जिस तरीके से आप मुझे ऑब्जेक्ट करो वैसे ही आपको ऑब्जेक्ट करेंगे, लोग भी ऑब्जेक्ट करेंगे, तो आपका हर चीज का रीजन होना चाहिए। प्रियांशु ने अच्छा रीजन दिया, बोला क्या मे पॉसिबल दैट इट मे हैव हाई फीवर, ठीक है, मे पॉसिबल ही हैज बीन आल्सो बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट 5 डेज, ठीक है। तो प्रियांशु अच्छा पॉइंट बोलेगा तो क्या पता मुझे काट देगा उस समय वहां पे, तो जीटे वहां सब नोट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास रीजन होना चाहिए, लॉजिकल रीजन है वैसे प्रियांशु का, अगर क्या पता 4 या 5 दिन से अगर वो बीमार है तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसको। अब लेकिन मेरा तजुर्बा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ अभी अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि मेक इट लेट लेट जेंटलमैन जस्ट लेट्स अज्यूम दैट इट इज ही इज हैविंग फीवर ओनली एट दैट नाइट, दैट कैन बी क्योर्ड विद नॉर्मल पैरासिटामोल और डिस्प्रिन, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, अगर तुम लोग इसको इन्फ्लुएंस कर पाते हो वहाँ पे अपने ग्रुप मेंबर्स को, तो आप लीडर हो, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप तो फिर कुछ काम के ही नहीं हो फिर तो। समझ में आया? और कोई कोई इश्यूज प्रियांशु, हो गया क्लियर आउट? सर सर ये तो हाँ टोटल सर डिस्ट्रैक्शन हुआ ना हाँ, क्या चीज, सर, फीवर वाला। क्या बोल रहे हो फिर, क्या सर ये तो पूरा डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन है वो? हाँ बोलो बोलो। हाँ विकास, आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को, बाकियों को आ रही है सर आवाज। जैसे हाँ बोलो। वो जो विलेजर है, हाँ हाँ सर विलेजर जो है वो हेल्प ले सकता था अपने विलेज से, वो हमारे पास आया हेल्प के लिए। हाँ, तो यही तो तुम हीरो है ना, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम, ये तो स्टोरी बनाई इसलिए आती है ना जानबूझ के, ये मत सोचो तुम कि तुम्हारे पास क्यों आ रहा है।
वो तो स्टोरी बनाई गई है, ऐसी ही होता है हमेशा, कोई ना कोई सर इंसिडेंट तुम्हारे पास ही आएगा हमेशा। सारी प्रॉब्लम है दुनिया की, सारी प्रॉब्लम तुम्हारे पास ही आएंगी उस समय। ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का रूल होता है कि तुम्हें ये भी डिस्ट्रैक्ट कर देगा, वो भी डिस्ट्रैक्ट कर देगा, 4-5 प्रॉब्लम, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको प्रॉब्लम नहीं पता चले प्रायोरिटाइज करें किसको। तो आपको ऐसा कूल माइंड हेडेड होकर के आपको ये सॉल्व करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे पहले किसके पास जाना है, करना क्या है मेरे को। अब सॉल्व हो गया सबका प्रॉब्लम, ठीक है? सर बोलो। एक और यस हाँ बोलो। सर हमारा डिस्टेंस, सर पोटा से हमारा मोरी का डिस्टेंस कितनी, क्या बोलते हैं, हम जहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं हाँ हाँ, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 10 अप्रोक्सीमेटली? किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर। तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे, साइकिल लेकर जाना है तुम्हें तो। अब तुम्हें घर पहुंचना है वैसे भी, अब तुम यार कितनी लेट पहुंचोगे उसके बाद तो। हालांकि टाइम पे पहुंचना है, 6 PM से पहले पहुंचना है, ठीक है? तो 5:30 PM से प्रोसीड कर लेना वहां से। हाँ, जो लास्ट में बोला, वी विल ऑल गेट टुगेदर एट द कॉमन जंक्शन पॉइंट एट, मतलब जो भी है वहाँ आपका मीटिंग पॉइंट बनाना अपना, वहां से 5:30 PM के लिए प्रोसीड कर लेना, ठीक है? वहां से और अपना 6 बजे पहुंच जाना उधर पे। बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं, वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें, या ज्यादा बड़ी हार्ड। ये तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल वाली है, तो इससे भी हार्ड हार्ड आती है। ये तो आपको बोले चुटकी में होना जाना चाहिए था आपका आंसर। तो आप ना डिटेल्स देखो, जब भी आप ना ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो डिटेल्स देखो, वहां पर रहकर देखो। अगर आप उस जगह पे होते तो क्या करते वहां पे। जैसे मैंने आपको आग के बारे में बताया, डिटेल्स बताया, बाल्टी वाल्टी के बारे में बताया, तो रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करो। आप कोशिश करना कि जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसको पकड़ो, ठीक है? किसी को जैसे होता है बॉम्ब स्क्वाड का भी बुला लेते हैं कभी कभार। जैसे आग लगने में फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाते हैं, ऐसे ही अगर कभी बॉम्ब ब्लास्ट होना वाला होता है तो आप बॉम्ब स्क्वाड को बुलाना उस टाइम पे। हो गया आज का क्लियर सब कुछ? रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं और आज की ये क्लियर होनी चाहिए, आपकी कॉपी में नोट डाउन हो जाना चाहिए सबका सोल्यूशन। क्यों विकास, सबका आज सोल्यूशन नोट डाउन हो जाएगा ना? यस सर। चलो ठीक है, विद दिस आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर, और डिनर अच्छे से कर लेना। पूजा हो गया सॉल्यूशन पूरा यस आज? सॉल्व समझ में आया ना सॉल्यूशन? है? आवाज, Yes, sir. माइक ऑफ है, ओके ऑलराइट। अभी भी किसी को डाउट रहता है तो फिर दे कैन कांटेक्ट मी बाद में, जब लिख रहे होगे सोल्यूशन। हर एक का मल्टीपल, इसके एक सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, लेकिन ये आइडियल सबसे ज्यादा हो सकता है वैसे। ऑलराइट, किसी को आइडिया आएगा तो बताना मेरे को भी। ओके ऑलराइट, गुड नाइट है, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके।